Assalamu alaikum dear students. In the previous class, we have actually discussed about the direction ratios and direction cosines of a non-zero vector. When a vector has been expressed in terms of components, so if a vector v has been expressed in terms of its components as a1i plus a2j plus a3k, then the ordered three tuple of its scalar components, that is a1, a2 and a3, are termed as this direction. These direction ratios or direction numbers. So that is, in simple words, in simple senses, we can say that direction ratios or direction numbers of a non-zero vector are nothing. They are just the ordered three tuple of its scalar components. So locate the scalar components of a non-zero vector along the coordinate axes and make the ordered three tuple of those three scalar components, and there you will get the direction ratios of that non-zero vector. Now what are direction cosines? Now if this vector v is making an angle alpha with positive x-axis, beta with positive y-axis and gamma with positive z-axis, then this alpha, beta and gamma are called the direction angles, and the ordered three tuple of cos alpha, cos beta and cos gamma are termed as this direction cosines. So the ordered three tuple of, in the previous class we have discussed the ordered three tuple of cos alpha, cos beta and cos gamma, they are known as the direction cosines of a proper vector of a non-zero vector v, where alpha, beta and gamma are the direction angles, means that angles which a vector v makes with the positive directions of x-axis, y-axis and z-axis, right? और ये cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा हमने प्रीवियस क्लास में कैलकुलेट भी कर रखा है. दैट इज cos अल्फा का वैल्यू आया था, if vector v is a1i plus a2j plus a3k, then the value of cos alpha is a1 by mod v, the value of cos beta is a2 by mod v, and the value of cos gamma is a3 divided by mod v. The mod v, तो mod v एक्चुअली क्या होगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर. The magnitude of a vector when vector has been expressed in terms of the components, and that's directly equal to the non-negative square root of sum of squares of the scalar components. So non-negative square root of a1 square plus a2 square plus a3 square. So these concepts we have discussed in the previous class. Now we are going to discuss some important results. Regarding direction ratios and direction cosines of a non-zero vector. जो previous class था जिसमें हमने discuss किया था direction ratios and direction cosines of a vector, उसी बिहाफ पे हम उन direction ratios और direction cosines के बारे में कुछ important results discuss करने वाले हैं. तो सबसे पहला result जो यहाँ पे हम discuss करने वाले हैं, and that is parallel vectors have proportional. The first important result which will come under the heading of direction ratios and direction cosines, and that is parallel vectors have proportional direction ratios. Parallel vectors have proportional direction ratios. पैरेलल वेक्टर्स जो आपके पास होंगे उनके डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे. प्रोपोर्शनल मींस इन द सेम रेशियो. तो आपके पास अगर वेक्टर्स है v1 और दूसरा वेक्टर है v2, अगर ये दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो पैरेलल मींस इनके सपोर्ट्स पैरेलल होंगे, इनका सेंस सेम हो सकता है, अपोजिट हो सकता है, इनका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, but their supports must be parallel. So when two vectors v1 and v2 are parallel, if v1 is expressed in terms of components, v2 is expressed in terms of components, then the components of these vectors, which are known as direction ratios, and the direction ratios of these vectors must be proportional, means they must be in the same ratio. Means first direction ratio of v1 divided by first direction ratio of v2 must be equal to second direction ratio of v1 divided by second direction ratio of v2 must be equal to third direction ratio of v1 divided by third direction ratio of v2. That is, the direction ratios of these parallel vectors are proportional. So ये चीज हमें यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा, and here lies the proof. So parallel vectors must have proportional
डायरेक्शन रेशियोज। तो जिगर हम यहां पे कंसिडर करेंगे दो वेक्टर्स, एक का नाम v1 और दूसरे का नाम v2 रखेंगे। लेट v1 एंड v2 be two parallel vectors. Let v1 and v2 be two parallel vectors. Then जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे, एक वेक्टर ये है आपका सपोज, तो दूसरा वेक्टर जो इसके पैरेलल होगा ऐसे होगा, या इसकी डायरेक्शन सेम हो सकती है या इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, या इसका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, इनका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, या इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। So Jigar, when vectors are parallel vectors are collinear vectors must satisfy a condition, and the condition is all about what? One must be the scalar multiple of other. So when vectors are parallel, one must be the scalar multiple of other. यानी अगर ये आपके पास एक वेक्टर v1 है, तो जब ये वेक्टर है सपोज, ये होगा लैम्डा टाइम्स v1, क्योंकि लैम्डा एक स्केलर से मल्टीपल कर दो तो इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है। अगर लैम्डा पॉजिटिव से कर रहे हो तो डायरेक्शन सेम रहेगी, लेकिन अगर लैम्डा नेगेटिव से कर रहे हो तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। लेकिन सपोर्ट्स जो हैं इनके सेम ही रहेंगे, यानी पैरेलल रहेंगे, तो ऑब्वियसली वेक्टर्स मस्ट बी पैरेलल। सो पैरेलल वेक्टर्स सेटिस्फाई द कंडीशन दैट वन मस्ट बी द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। सो देन v2 मस्ट बी, तो वेक्टर v2 जो होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स v1, लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो, लैम्डा जीरो वेक्टर के बराबर, ये लैम्डा जो है, लैम्डा स्केलर जो है ये जीरो स्केलर के बराबर नहीं होना चाहिए, वेयर लैम्डा इज सम स्केलर और लैम्डा इज सम रियल नंबर, वेयर लैम्डा, ये लैम्डा जो क्या होगा इज ए रियल नंबर, ये कोई रियल नंबर होगा। तो व्हेन वेक्टर्स आर parallel, here v1 and v2 we have taken two parallel vectors. When they are parallel, obviously one must be the scalar multiple of other, so we have taken here v2 is the scalar multiple of v1, so v2 must be equal to lambda times v1, right? Now if we talk about this vector v1 expressed in terms of components, now if vector v1 has its components as a1i plus a2j plus a3k, we actually need to prove that parallel vectors have proportional direction ratios. So we have taken a vector expressed in terms of its components as a1i plus a2j plus a3k. Therefore vector v2 किसके बराबर आएगा? Yes, that's lambda times v1. Vector v2 is lambda times v1, and that's equal to lambda times, put the value of v1 here, that's a1i plus a2j plus a3k, right? So implies vector v2 is then equal to, तो वेक्टर v2 जो है ये किसके बराबर आएगा? लैम्डा एक स्केलर है, अंदर एक ब्रेसेस में एक वेक्टर है, तो इस स्केलर से हर किसी कंपोनेंट को मल्टीपल होगा, तो मल्टीपल करके देखो क्या आएगा, वेक्टर v2 मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा a1i प्लस लैम्डा a2j प्लस लैम्डा a3k. So this is our vector v2. You have a vector v1 expressed in terms of a components, and you have a vector v2 again expressed in terms of components. And when two vectors are expressed in terms of their components, you can easily locate their direction ratios or direction numbers. Because direction numbers or direction ratios are nothing, they are actually the scalar, the ordered three tuple of scalar components. So scalar components of v1 are there, scalar components of v2 are there, means you can easily find their direction ratios. So therefore direction ratios of v1 are, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर v1 आर, तो वेक्टर v1 के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? यस, ऑर्डर्ड थ्री टपल ऑफ a1 a2 a3. सो a1 a2 a3. तो जिगरा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर v2 क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर v2 आर, तो वेक्टर v2 के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? लैम्डा a1 lambda a2 lambda a3. So they are lambda a1 lambda a2 lambda a3.
तो आ गए वेक्टर v1 के भी डायरेक्शन रेशियोज और वेक्टर v2 के भी डायरेक्शन रेशियोज। नाउ अब हम इन डायरेक्शन रेशियोज को मतलब इनका रेशियो निकालेंगे कि सच में ये प्रोपोर्शनल होते हैं या नहीं होते हैं। सो फॉर दैट नाउ सिंस v1 का पहला डायरेक्शन रेशियो जो है उसे डिवाइड करेंगे v2 का पहला डायरेक्शन रेशियो, दैट इज a1 डिवाइडेड बाय, सो a1 डिवाइडेड बाय लैम्डा टाइम्स a1 मस्ट बी इक्वल टू, यस, अब a2 बाय लैम्डा a2 कर दो, सो दैट इज a2 डिवाइडेड बाय लैम्डा a2। अब ले लो जिगरा a3 डिवाइडेड बाय लैम्डा a3, सो a3 डिवाइडेड बाय लैम्डा a3। तो अल्टीमेटली ये बिल्कुल सेम होंगे, क्यों? बिकॉज a1 एंड a1 गेट्स कैंसल्ड, रिजल्ट इज 1 डिवाइड बाय लैम्डा। यहां पे भी बचेगा 1 डिवाइड बाय लैम्डा, यहां पे भी बचेगा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा, सो दैट्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा ईच। यानी हर किसी का वैल्यू जो a1 बाय लैम्डा a1, a2 बाय लैम्डा a2, a3 बाय लैम्डा a3, तीनों रिजल्ट्स में से आपको मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा। सो दे आर इन द सेम रेशियो, फर्स्ट बाय फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड बाय सेकंड इज इक्वल टू थर्ड बाय थर्ड, एंड all are equal to the same number 1 divided by lambda, means the direction ratios of v1 and v2 are in the same ratio, and when they are in the same ratio they are said to be proportional. So therefore direction ratios of vector v1 and vector v2 are proportional. Therefore direction ratios of vector v1 and vector v2 are proportional. तो वेक्टर v1 और वेक्टर v2 के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो होंगे प्रोपोर्शनल, राइट? लेकिन what are this vector v1 and v2? We have taken that v1 and v2 are two parallel vectors. तो इसका क्या मतलब? हमने दो पैरेलल वेक्टर्स लिए थे, उनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल आए हैं, तो हम कहेंगे 10 पैरेलल वेक्टर्स हैव प्रोपोर्शनल डायरेक्शन रेशियोज। तो यहां पे मेंशन कर देंगे 10 पैरेलल वेक्टर्स हैव proportional, 10 parallel vectors have proportional direction ratios. 10 parallel vectors have proportional direction ratios. तो अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे। तो जिगरा ये जो स्टेटमेंट है कि पैरेलल वेक्टर्स हैव प्रोपोर्शनल डायरेक्शन रेशियोज, इसका कन्वर्स भी सही है। मतलब अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हैं तो ऑब्वियसली वो क्या होंगे? पैरेलल। हमने यहां पे वेक्टर्स लिए हैं पैरेलल, उसमें से रिजल्ट निकल के आया है कि देयर डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। लेकिन इसका कन्वर्स भी सही होता है कि अगर दो वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियोज यस प्रोपोर्शनल होंगे तो वो दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे। द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। इसका कन्वर्स जो है वो भी सही होता है। तो कन्वर्स क्या होगा फिर इसका? दैट इज इफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर प्रोपोर्शनल, that is if the direction ratios of two non-zero vectors, that is if the direction ratios of two non-zero vectors are proportional, अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे तो देन दे आर पैरेलल, दे मस्ट बी पैरेलल, सो देन दे आर पैरेलल। लिहाजा जिगरा इसका जो कन्वर्स है, स्टेटमेंट का जो कन्वर्स है वो भी सही होगा। कन्वर्स इन द सेंस हमने पहली कंडीशन में लिया था कि वेक्टर्स आर पैरेलल, तो उसमें से प्रूव हुआ कि देयर डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। अब जो यहां पे हमने मेंशन किया है कि इसका कन्वर्स भी सही होगा, तो कन्वर्स मतलब अगर अब दो नॉन जीरो वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हैं तो ऑब्वियसली दे मस्ट बी पैरेलल। सो
two non-zero vectors are parallel if and only if their direction ratios are proportional. मतलब स्टेटमेंट भी सही है और इसका कन्वर्स भी सही है, राइट? तो ये बात हमने की थी डायरेक्शन रेशियोज के बारे में. अब अगर हम बात करेंगे इन पैरेलल वेक्टर्स के डायरेक्शन कोसाइनस के बारे में, तो इनके डायरेक्शन कोसाइनस के बारे में हम क्या कह सकते हैं? So for that we are going to calculate, we are going to first compute the direction cosines of both V1 as well as V2 और फिर चेक कर लेंगे कि इनके डायरेक्शन रेशियो के बारे में हम क्या कह सकते हैं. डायरेक्शन कोसाइनस के बारे में क्या कह सकते हैं? डायरेक्शन रेशियोज के बारे में हम ये कह सकते हैं कि when two vectors are parallel they have proportional direction ratios. अब डायरेक्शन कोसाइनस के बारे में क्या कह सकते हैं? So first we are going to compute the direction cosines. Now direction cosinus of vector v1 which is not a zero vector or v1 एक नॉन जीरो वेक्टर है तो दैट्स नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर, तो इसके डायरेक्शन कोसाइनस क्या होंगे? पढ़ा हमने जिगरा. v1 अगर आपके पास एक वेक्टर है जिसके डायरेक्शन जिसके स्केलर कंपोनेंट हैं a1 a2 और a3, तो यही स्केलर कंपोनेंट होंगे इसके डायरेक्शन रेशियोज. मतलब इसके डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे वो होंगे ऑर्डर्ड थ्री टपल ऑफ a1 a2 और a3. और प्रीवियस क्लास में हमने ये भी सीखा है टू हाउ टू कैलकुलेट द डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स डायरेक्शन रेशियोज. डायरेक्शन रेशियोज में से कैसे निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइनस? तो प्रीटी सिंपल है जिगरा. फिर डायरेक्शन कोसाइनस क्या होते हैं? शाबाश. ऑर्डर्ड थ्री टपल ऑफ अगेन फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो, सो a1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द थ्री डायरेक्शन ratios. So that is a1 square plus a2 square plus a3 square. Similarly, a2 divided by same thing and a3 divided by same thing will give you the direction cosinus. तो हम easily निकाल सकते हैं. अगर एक वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज आपके पास गिवन है तो आप उन डायरेक्शन रेशियोज में से इजीली निकाल सकते हो डायरेक्शन कोसाइनस. तो जिगर डायरेक्शन रेशियो है v1 के क्या? a1 a2 a3. तो फिर डायरेक्शन कोसाइनस क्या आएंगे? Ordered three tuple of first direction ratio divided by non-negative square root of sum of squares of the direction ratio. So a1 square plus a2 square plus a3 square, right? तो दूसरा डायरेक्शन का साइन क्या आएगा? a2 divided by non-negative square root of a1 square plus a2 square plus a3 square. तो तीसरा डायरेक्शन का साइन क्या आएगा? a3 divided by non-negative square root of a1 square plus a2 square plus a3 square. तो ये बने जिगर v1 वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइनस. और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्डर्ड थ्री टपल ऑफ a1 डिवाइडेड बाय non-negative square root of sum of squares of a1 a2 and a3, that is scalar components. तो ये क्या देता है एक्चुअली? मॉड्यूलस. So that's actually the magnitude of vector v1. And this will become a2 divided by again the same thing, that is magnitude of vector v1, and a3 divided by magnitude of vector v1, right? So these are the direction cosinus of vector v1. In the similar fashion we will calculate the direction cosinus of vector v2. और v2 वेक्टर जो हमारे पास है वो क्या है? लैम्डा टाइम्स v1, दैट इज वो है लैम्डा a1i प्लस लैम्डा a2j प्लस लैम्डा a3k. अब हम इस वेक्टर के निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइनस. ऑल्सो डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ वेक्टर v2 which is again not a zero vector, which is again a non-zero vector, which is again a proper vector. तो इस प्रॉपर वेक्टर v2 के अब क्या बनेंगे डायरेक्शन कोसाइनस? इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? लैम्डा a1 लैम्डा a2 लैम्डा a3. तो डायरेक्शन कोसाइन क्या बनेगा? लैम्डा a1 डिवाइडेड बाय नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड. तो जिगर ये बनेगा डायरेक्शन कोसाइनस आएंगे ऑर्डर्ड थ्री टपल ऑफ लैम्डा a1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 है तो यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v2 आएगा.
So magnitude of vector v2. Yes, next would be lambda a2 divided by magnitude of vector v2, and finally we would have lambda a3 divided by magnitude of vector v2, right? तो ये आगे जिगर डायरेक्शन कोसाइन्स किसके, वेक्टर v2 के, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्डर्ड थ्री टपल ऑफ लैम्डा a1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v2 किसके बराबर है, लैम्डा टाइम्स v1. सो इंस्टेड ऑफ v2 वी आर गोइंग टू राइट लैम्डा टाइम्स v1. सो लैम्डा टाइम्स v1 कॉमा लैम्डा a2 डिवाइडेड बाय, यस जिगर, मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा टाइम्स v1 एंड यहां पे लैम्डा a3 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v2 के बदले लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा टाइम्स v1, बिकॉज v2 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स v1. तो ये आगे जिगर यस डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ वेक्टर v2. अब अगर हम लैम्डा टाइम्स v1, लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा टाइम्स v1 को देखेंगे तो यहां पे मॉड लैम्डा और मैग्नीट्यूड ऑफ v1, यानी अगर लैम्डा को बाहर लेके आएंगे तो मॉड लैम्डा बचेगा. अब इस मॉड लैम्डा और मॉड लैम्डा, ये मॉड लैम्डा जो आपके पास होगा इसके दो वैल्यू हो सकते हैं, एक हो सकता है प्लस और दूसरा हो सकता है माइनस. अब ये प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा, देखो जिगरा, आपके पास वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल हैं. तो सपोज ये आपका वेक्टर v1 है और सपोज ये आपका वेक्टर v2 है. अगर वेक्टर v1 और वेक्टर v2 की डायरेक्शन सेम है तो ये जो है ये वेक्टर v2 है एक्चुअली, और v2 का एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है, लैम्डा टाइम्स v1. तो इस समय लैम्डा क्या होगा, क्योंकि v1 और v2 की डायरेक्शन जो है वो सेम है तो लैम्डा मस्ट बी पॉजिटिव. लैम्डा मस्ट हैज द वैल्यू एंड दैट मस्ट हैज इट इज पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होता तो डायरेक्शन इसकी अपोजिट हो जाती. अब अगर आपके पास वेक्टर ये है v1, दिस इज वेक्टर v1, और आपके पास ये है वेक्टर v2, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है v2 दैट्स इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर v1, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो ऐसे है, तो डायरेक्शन अपोजिट हुई है. तो जब डायरेक्शन अपोजिट होगी तो मींस लैम्डा से आपने मल्टीपल कर दिया, दैट मस्ट बी नेगेटिव. तो लैम्डा इस समय क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव स्केलर मल्टीपल करने से एक वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट होगी. तो जिगर एट दिस टाइम when vector v1 and v2 are parallel and they have the same direction, then lambda must be positive. And is in that case, when v1 and v2 are two parallel vectors but v1 and v2 have opposite senses, then lambda must be negative. तो जिगर इस लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव तब आएगा जब v1 और v2 की डायरेक्शन सेम होगी, और इस लैम्डा का वैल्यू नेगेटिव तब आएगा when when the vectors v1 and v2 have opposite senses, right? नाउ अगर हम पॉजिटिव लैम्डा ले लेंगे तो लैम्डा और लैम्डा कैंसिल, बचेगा वापस a1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v, यानी वही डायरेक्शन कोसाइनस जो किसके आए, वेक्टर v1 के. तो v1 और v2 के डायरेक्शन सेम होंगे कब, when v1 and v2 have same direction, same sense. तो जिगर इस समय अगर बात करेंगे, ये v1 वेक्टर और v2 वेक्टर पैरेलल हैं, इनके सपोर्ट्स पैरेलल हैं. तो जब दो वेक्टर्स के सपोर्ट्स पैरेलल होते हैं तो कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे या पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे, और जब इनका सेंस भी सेम होगा तो क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर्स व्हिच हैव सेम सेंस आर नोन एज यस लाइक वेक्टर्स. तो जब v1 और v2 होंगे लाइक वेक्टर्स तो डायरेक्शन कोसाइन इनके होंगे सेम, क्योंकि यहां से पॉजिटिव लैम्डा बाहर आएगा, लैम्डा बाय लैम्डा कैंसिल होगा, बचेगा a1 बाय मॉड ऑफ v1, a1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ v1 वो है, यहां पे बचेगा a2 बाय मॉड v1, यहां पे बचेगा a3 बाय मॉड v1, तो वो है एक्चुअली डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ व्हाट, v1. तो v1 और v2 के डायरेक्शन कोसाइन सेम आ रहे हैं कब, when v1 and v2 are like parallel vectors. So that is, यहां पे हम कहेंगे the direction cosines of v1 and v2 are same when v1 and v2 are like vectors. That is when lambda is positive. So यहां पे मेंशन कर देंगे, that is the direction cosines of v1, that is the direction cosines of v1 and v2 are same or equal when lambda is positive.
एंड द डायरेक्शन कोसाइनस। अब अगर लेमड़ा नेगेटिव है तो ऊपर का लेमड़ा और नीचे का लेमड़ा कैंसिल तो होगा, लेकिन यहां पे साइन आएगा नेगेटिव। तो यहां पे जो पहला डायरेक्शन कोसाइन बनेगा वो बनेगा माइनस A1 बाई मॉड ऑफ V1। यहां पे प्लस A1 बाई मॉड ऑफ V1 है, यहां पे बनेगा माइनस A1 बाई मॉड ऑफ V1। So they must be equal in magnitude but opposite in sign। मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, ये भी आएगा A1 बाई मॉड V1, ये भी आएगा A1 बाई मॉड V1, लेकिन ये वाला पॉजिटिव आएगा और ये वाला नेगेटिव आएगा। तो दैट मीन्स इफ lambda is negative then these direction cosines must be same in magnitude but opposite in sign। तो यहां पे मेंशन कर देंगे and the direction cosines are same in magnitude but opposite in sign। कब जिगरा? when lambda is negative, अगर lambda आएगा नेगेटिव। ठीक है जिगरा? सो डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ V1 और V2 जो हैं सेम आएंगे कब? when lambda is positive, और सेम आएंगे मैग्नीट्यूड में, अपोजिट होंगे साइन में कब? when lambda is, so it wholly and solely depends upon this lambda। now अगर ये lambda पॉजिटिव है तो वेक्टर्स होंगे लाइक वेक्टर्स, और अगर ये लैम्डा नेगेटिव है तो वेक्टर्स होंगे अनलाइक। तो यहां पे हम कंक्लूजन स्टेटमेंट लिख लेते हैं, दस लाइक पैरेलल वेक्टर्स हैव इक्वल डायरेक्शन कोसाइनस। दस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पे है, दस लाइक पैरेलल वेक्टर्स हैव इक्वल डायरेक्शन कोसाइनस। ये जो लाइक पैरेलल वेक्टर होंगे इनके डायरेक्शन कोसाइनस जो होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, क्योंकि हमने यहां पे देखा है V1 के वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन A1 बाय मॉड V, और यहां पे भी A1 बाय मॉड V, A2 बाय मॉड V, यहां पे भी A2 बाय मॉड V, A3 बाय मॉड V, यहां पे भी आया था A3 डिवाइडेड बाय मॉड V। सो thus like parallel vectors have equal direction cosinus, and unlike parallel vectors have डायरेक्शन कोसाइनस। ये डायरेक्शन कोसाइनस अनलाइक वेक्टर्स के जो होंगे, अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स के जो होंगे वो मैग्नीट्यूड में सेम होंगे बट दे वुड बी अपोजिट इन साइन। हैव डायरेक्शन कोसाइनस सेम इन मैग्नीट्यूड, but opposite in sign, तो मैग्नीट्यूड में ये जिगरा सेम होंगे लेकिन साइन में अपोजिट होंगे, क्योंकि V1 के हैं A1 बाय मॉड V और यहां मॉड ऑफ V1, और यहां पे होंगे माइनस A1 डिवाइड बाय मॉड ऑफ V1, माइनस A2 बाय मॉड ऑफ V1 एंड माइनस A3 डिवाइड बाय मॉड ऑफ V1। सो दस लाइक पैरेलल वेक्टर्स हैव इक्वल डायरेक्शन कोसाइनस, and unlike parallel vectors have direction cosinus equal in magnitude, same in magnitude but opposite in sign। तो जिगर अगर आपके पास पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो पैरेलल वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे और डायरेक्शन कोसाइन सेम होंगे, इक्वल होंगे अगर वो लाइक हैं, और डायरेक्शन कोसाइन सेम होंगे मैग्नीट्यूड में, अपोजिट होंगे डायरेक्शन में, सेंस में अगर वो पैरेलल वेक्टर्स व्हाट अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स, राइट। So that was all about the first fact about the direction ratios and direction cosinus of a non-zero vector. Now secondly we are going to discuss the direction ratios and direction cosinus of AB vector in terms of endpoints। अगर आपके पास एक वेक्टर है AB जिसके एंड पॉइंट्स जो हैं, सपोज A इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1 z1, और B जो इसका फाइनल पॉइंट है, सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2। सो यू हैव अ वेक्टर AB, you have a directed line segment AB, and this directed line segment AB has represented in terms of the coordinates of its endpoints। A has the coordinates x1 y1 z1 and B has the coordinates x2 y2 z2,
एंड यू हैव टू फाइंड इट इज डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन्स। तो इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन कोसाइन किसके बराबर आएंगे? सो सपोज यहां पे हम लेट करेंगे, लेट ए ऑफ x1 y1 z1 and b of x2 y2 z2, b of x2 y2 z2 be the endpoints, means a is the initial point of vector ab and b is the final point. सो हमें इस वेक्टर की चाहिए डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, लेकिन डायरेक्शन रेशियो हो या डायरेक्शन कोसाइन हो तब निकाल पाएंगे जब हमें पहले इस वेक्टर ए बी का स्ट्रक्चर मालूम हो, इसके कंपोनेंट्स मालूम हो। सो देयरफॉर सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे वेक्टर ए बी को। ये ए बी वेक्टर किसके बराबर आएगा? सो ए बी वेक्टर इज एनी वेक्टर, और एनी वेक्टर हमेशा होता है किसके बराबर? पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स इनिशियल पॉइंट। सो दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी minus position vector of A, and that's equal position vector of B. B is a point, its coordinates are x2, y2, z2. The position vector must be x2y plus y2j plus z2k minus times position vector of A. A is a point, its coordinates are x1, y1, z1. So the position vector must be x1i plus y1j plus z1k, right? So implies AB vector is then straight away equal to, yes, x2i minus x1i, so x2 minus x1 into I plus y2j minus y1j, so y2 minus y1 into j plus z2k minus z1k, so plus z2 minus z1 into k. So this would be the structure of AB vector. Now AB vector has been expressed in terms of its components, and when it has been expressed in terms of components, we can locate its direction ratios as well as the direction cosines. So therefore क्या होंगे जिगर direction ratios? Therefore direction ratios of AB are, तो क्या होंगे AB के direction ratio? Yes, ordered three tuple of its scalar components, and that is x2 minus x1, comma y2 minus y1, comma z2 minus z1. So the ordered three tuple of x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1 must be its direction ratios. So jigar, if you have a vector AB expressed in terms of its initial and final point, which have their respective coordinates, हाँ जिगर, तो क्या आ रहे हैं डायरेक्शन कोसाइनस? these direction ratios ordered three tuple of x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. दैट इज अगर हमारे पास डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, ए बी वेक्टर है ए बी जिसका इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है, और ए और बी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो हम डायरेक्टली इस ए बी वेक्टर का या ए बी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे? ordered three tuple of x2 minus x1, यानी difference of x coordinates, comma y2 minus y1 difference of y coordinates, comma z2 minus z1 that is difference of z coordinates. So means if you have a directed line segment with initial point A as 1 2 3 and final point B as 5 7 9, then it is direction ratios can be directly calculated by, क्या होंगे direction ratios? Yes, 5 minus 1 that is 4, 7 minus 2 that is 5, 9 minus 3 that is 6. So 4 5 6 would be its direction ratios. So you can directly calculate the direction ratios when a vector AB is given in terms of its end points. Now from these direction ratios we can calculate the direction cosines. तो क्या होंगे फिर direction cosines of this AB? Also direction cosines of ABR, तो क्या होंगे इस AB के डायरेक्शन कोसाइन? यस, पहला डायरेक्शन कोसाइन, फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, दैट इज नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द थ्री डायरेक्शन रेशियोज। लेकिन नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द थ्री डायरेक्शन रेशियोज विल गिव यू द मैग्नीट्यूड। तो पहला डायरेक्शन रेशियो क्या है? x2 minus x1,
divided by square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square, but that will give you the magnitude of AB. तो दूसरा डायरेक्शन को साइन that is y2 minus y1 divided by magnitude of AB, और तीसरा डायरेक्शन को साइन क्या आएगा, that is z2 minus z1 divided by magnitude of AB. So in this way you will locate both the direction ratios as well as the direction cosines of a vector when that vector has been actually expressed in terms of its endpoints, in terms of the coordinates of its initial and final points. Now we are going to discuss another important aspect regarding this direction ratios and direction cosines, and that is if we have the direction ratios of a vector, you can obviously form the vector. Means it is given that the direction ratios of a vector are ordered three tuple of x, y, z. अगर एक वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं that is x, y, z, तो आप इस वेक्टर को डायरेक्टली बना सकते हो कैसे, x के साथ i कैप प्लस y के साथ j कैप प्लस z के साथ k कैप, तो डायरेक्टली उस वेक्टर को बना सकते हो. लेकिन अगर आपके पास अब डायरेक्शन कोसाइन्स हैं तो कैसे एक वेक्टर को फॉर्म कर सकते हो, यानी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट इज डायरेक्शन कोसाइन्स हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. So that would be the third point, vector in terms of its direction cosinus. Vector in terms of its direction cosinus, एक वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे in terms of its direction cosinus. If instead of direction ratios direction cosinus of a vector are given, तो फिर उस वेक्टर का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. सो यहां पे लेट करेंगे, और इफ ऑर्डर्ड थ्री टपल ऑफ L, M, N or the, because direction cosinus of a vector are usually represented by the letters L, M and N. So if ordered three tuple of L, M, N or the direction cosinus of a vector V, then हाँ जिगरा, एक वेक्टर v के आपके पास अवेलेबल है डायरेक्शन कोसाइन्स, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन्स जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ा था, द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ ए वेक्टर आर द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ इट्स यूनिट वेक्टर. तो चूंकि L, M और N वेक्टर v के डायरेक्शन कोसाइन हैं, लेकिन वेक्टर v के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसके स्केलर कंपोनेंट होंगे L, M एंड N. जब उसके स्केलर कंपोनेंट होंगे L, M एंड N, तो वो वेक्टर यूनिट वेक्टर किसके बराबर आएगा, ऑब्वियसली Li प्लस Mj प्लस Nk. सो देयरफॉर यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v कैसे डिनोट होगा, v कैप मस्ट बी इक्वल टू देन Li प्लस Mj प्लस Nk. व्हाई, बिकॉज डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ ए वेक्टर, because direction cosinus of v must be the direction cosinus of v are the scalar components of yes v cap. The direction cosinus of a vector are the scalar components of its unit vector. So implies that is why v cap is equal to Li plus Mj plus Nk. But instead of v cap, we can write vector v divided by magnitude of vector v, and that's equal to Li plus Mj plus Nk. Vector v cap, instead of v cap we have written vector v divided by the magnitude, क्योंकि वेक्टर को अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा, यूनिट वेक्टर along the direction of that vector. So that is why instead of v cap we have written vector v divided by the magnitude. So implies अब वेक्टर v जो है ये किसके बराबर आएगा, वेक्टर v जो है इसका ये मैग्नीट्यूड जो है डिवाइड में है तो इस साइड में मल्टीपल होगा. सो वेक्टर v इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू Li प्लस Mj प्लस Nk. तो in this way you can calculate a vector when the direction ratios of that vector are not given, but instead of direction ratios the direction cosines are given. So at that time the vector v must be equal to magnitude of vector v
into Li plus Mj plus Nk. These were the important facts, important results regarding direction ratios and direction cosinus of a vector. And now I think this is the building material for our next exercise, and in the next class we are going to start the first exercise of three-dimensional geometry.